इसका ये होने जा रहा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। अब सुनाई दे रहा है प्रभु जी आपको सब कोई? जी जी मेरा वॉइस? प्रभु जी। हरे जी कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। मैं आईसीसी बैंगलोर के आईसीसी साउथ बैंगलोर के मंदिर की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस दो शब्द बोलने के लिए मुझे ये प्रस्तुत किया गया है। आज हम इस भगवद गीता सरल रूप का सेशन 6 दिनों का एक्चुअली कोर्स है। तो हम एक्चुअली आज हमारे बीच में इस ग्रेस सुमित उपाध्याय प्रभु जी प्रवचन देने जा रहे हैं। हमारे सुमित उपाध्याय प्रभु जी इस काल में 7 साल से सेवा करते आ रहे हैं। सो प्रभु जी एक्चुअली आईटी डीसीएक्स टेक्नोलॉजी बैंगलोर से कार्य करते हैं। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि सुमित प्रभु जी हमारे श्रीमद् भगवद गीता 6 दिनों का सेशन को बहुत सरल रूप से समझाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच प्रभु। Thank you. सभी डिवोटीज का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस भगवद गीता के कोर्स में। 6 दिवसीय जो हमारा सत्र है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृपया बाकी सब लोग म्यूट पे रहें ताकि म्यूट करें। बीच में डिस्टरबेंस ना हो। हाँ, तो इस 6 दिवसीय सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि रविवार की शाम को जनरली जब सब लोगों का एक रिलैक्स करने का दिन होता है, रविवार बाहर जाने का टाइम होता है, आप सभी ने समय निकाला आध्यात्मिक विषय के लिए, भगवत गीता पे चर्चा के लिए, गीता के परिचय के लिए समय निकाला। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो ये जो 6 दिन का सत्र है इस्कॉन साउथ बेंगलुरु की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है। तो हमारे इस्कॉन साउथ बेंगलुरु मंदिर के एक परिचय के लिए मैं एक छोटा सा आप लोगों को वीडियो दिखाना चाहूँगा जिसमें हमारे मंदिर में क्या गतिविधियां होती हैं उसका एक स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। क्या आपको स्क्रीन दिख पा रहा है वीडियो का? हरे कृष्ण। हाँ, दिख रहा है प्रभु जी। हाँ, 1 मिनट में वीडियो चलाता हूँ। Humanity has been on a quest for sustainable peace and happiness since time immemorial. Yet despite unprecedented advances in science, technology, and other fields, peace and happiness continue to elude the current population. A recent study by the World Health Organization revealed that the biggest medical challenge the world faces today is depression. In India itself, 57 million people are affected by depression. Studies are indicating a steady rise in anxiety disorders and substance abuse amongst the youngsters. An immensely saintly and compassionate visionary, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, foresaw these problems more than 50 years ago and worked selflessly and tirelessly for a solution. One of his main purposes of setting up the International Society for Krishna Consciousness, popularly known as ISKCON, was to provide spiritual wisdom and care to help society achieve real peace and unity. In the last 50 years, ISKCON has established 600 temples and centers in more than 80 countries that are regularly visited by almost 18 million people every year, sold 520 million books on Vedic philosophy and culture, distributed 3 billion plates of sanctified vegetarian meals worldwide, conducts more than 6,000 cultural festivals each year, inspired millions of youths to give up detrimental habits and adopt responsible and meaningful lives, and runs 65 eco-friendly farms to practice simple living and high thinking. ISKCON is now the largest NGO in India and one of the 10 largest NGOs in the world. The ISKCON Cultural Center, also known as the ICC, is attempting to effectively carry out the legacy of its founder Srila Prabhupada in South Bengaluru.
by engaging people of all ages in meaningful philosophical discussions, devotional music, dance, dramas, debates, pilgrimages, and other cultural events, ICC is impacting the lives of thousands of people. Its vision is to be a unique place that transforms and nourishes the community with spiritual wisdom, care, and love. To help develop the youth, ICC regularly conducts seminars on philosophy, ethics, art, and culture, yoga retreats to focus on inner development, and presentations and counseling sessions on leadership skills, personality development, effective communication, and other relevant topics. ICC has started constructing a new facility geared towards the needs of the young population. The facility will include an extensive Vedic library, rooms for seminars and classes, a large auditorium to host various cultural events, play area for children, and a beautiful temple of Sri Radha and Krishna and Jagannath, Baladev, and Subhadra. The new facility is expected to be ready by 2023 and will serve a very important purpose in the holistic development of the people and especially the youth of South Bengaluru. We encourage you to visit us and become part of a wonderful journey of self-realization and happiness. Thank you and Hare Krishna. तो ये एक छोटा सा वीडियो था हमारे मंदिर का परिचय का और क्या गतिविधियां हमारे मंदिर में चलती हैं इसके बारे में। तो हिंदुस्तान की भारत देश की अगर हम देखेंगे कि सबसे बड़ी देन अगर विश्व को है तो वो है आध्यात्म। हमारे भारतवर्ष के बहुत बड़े बड़े संत महात्मा हुआ जिन्होंने सनातन धर्म को काफी उसका प्रचार किया। ऐसे ही एक महान संत थे एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना करी 1966 में और जब वो अमेरिका जा रहे थे तो उनके पास साधन नहीं था अमेरिका जाने का। तब वो एक पानी के जहाज में, मालवाहक जहाज में 70 वर्ष की आयु में वो किसी तरह अमेरिका गए। पानी के जहाज में उनको एक कॉम्प्लीमेंट्री टिकट था, उनके एक परिचित थे इंडिया शिपिंग कंपनी के, उन्होंने उनको एक टिकट दिया कॉम्प्लीमेंट्री और काफी मना भी किया कि आप मत जाइए, आप इतने वृद्ध हैं। पानी का जहाज जो होता है जब समुद्र में जाता है तब काफी तकलीफ होती है। उनको उस रास्ते में 2 हार्ट अटैक भी आए और इन सब के बावजूद उनका जो निश्चय था वो दृढ़ था कि मुझे अपने गुरु की इच्छा पूरी करनी है और पूरे विश्व में सनातन धर्म को फैलाना है, भगवान के नाम को फैलाना है। और इस तरह से उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय के द्वारा अगले 10 सालों में 100 मंदिरों की स्थापना करी, 14 बार पूरे दुनिया का चक्कर लगाया और 60 से अधिक बुक्स लिखी। भगवान प्रभुपाद ने हर दिन लगभग 2 या 3 घंटे उनका सोने का एक नियम था। इसके अलावा वो रात को जाग के भगवद गीता का इंग्लिश ट्रांसलेशन करना, उस पर टिप्पणियां लिखना, श्रीमद् भागवतम पे, चैतन्य चरितामृत, ऐसी कई बुक लिखी उन्होंने। और इतने बिना थके हुए उन्होंने अगले 10 साल तक सनातन धर्म का पूरी दुनिया में प्रचार किया। और ये उन्हीं के जो एफर्ट्स थे, इसके कारण आज हम ये क्लास यहाँ पे बैठ के कर पा रहे हैं। इसलिए हम अपनी क्लास की शुरुआत करने के लिए श्रील प्रभुपाद और परंपरा के दूसरे आचार्यों से आशीर्वाद लेंगे और मैं अभी मंगलाचरण प्रेयर्स करने के बाद में हम ये सत्र शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं स। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल। आज का सत्र शुरू करने के पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। आप सब अपना चैट विंडो में उसका उत्तर लिख सकते हैं कि आप में से कितने लोगों ने भगवत गीता का अध्ययन किया है और भगवत गीता का मूल संदेश आपके हिसाब से क्या है। आप चैट विंडो में टाइप करें तो मुझे ऑडियंस का थोड़ा सा पता चलेगा कि किस तरह से प्रभु जी प्रस्तुत करना। थोड़ा सभी डिवोटी का रिक्वेस्ट है कि आप एक नोट बना लीजिएगा। प्रभु जी जो भी कहेंगे उसका आप सरल तरह से हम ये कर सकेंगे। आपका जो भी कहेंगे वो नोट बना लीजिएगा। एक नोटबुक रख लेना चाहिए, पेन और नोटबुक साथ में। हाँ, जो पॉइंट आपको पसंद आए आप उसका नोट बना सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको आप लिख के रख लीजिए। सेशन के आखिरी में हम प्रश्नोत्तर सेशन करेंगे। तो अभी मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप में से कितने लोगों ने भगवत गीता पढ़ी है और भगवत गीता का मूल संदेश आपके हिसाब से क्या है। तो इससे मुझे आप पता चल जाएगा किस तरह से आप लोगों को ये प्रस्तुत करना है आज का कार्यक्रम। हरि बोल। अंकित प्रभु बोल रहे हैं 4 बार उन्होंने पढ़ी है और 2 टाइम सुवर्ण गौर हरि प्रभु जी के द्वारा पढ़ी है। श्वेता माता जी ने 1 बार पढ़ी है। अर्पिता माता जी रोज सुनती हैं, आंशिक अध्ययन हुआ है उनका। तो सभी का कुछ ना कुछ भगवत गीता के बारे में थोड़ा पढ़ा है या कब कहीं पूरा भी पढ़ा है। उज्ज्वल माता जी ने अभी नहीं पढ़ी है। पूर्वेश प्रभु ने रीडिंग प्रोग्रेस में है। संगीता माता जी पहली बार पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा। तो हमारा जो ये 6 दिवसीय सत्र है इसमें हम भगवत गीता के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जील प्रभु माता जी प्रभु ओके, जील प्रभु ने 1 बार पढ़ी है बट समझा नहीं है। ओके, आरविक पांडे सुमन माता जी आपके द्वारा सुनी है। ओके, मनाली माता जी डेली पढ़ती हैं, बहुत अच्छी बात है। तो हमारा जो ये 6 दिवसीय सत्र है उसमें हमारा उद्देश्य यही है कि गीता का एक परिचय दिया जाए। गीता के अंदर क्या बोला गया है, गीता क्या है और गीता के मुख्य विषय क्या हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। और गीता में 5 मुख्य विषय हैं, जैसा कि आप जिन्होंने पढ़ा है वो जानते होंगे कि गीता में 5 मुख्य विषय हैं। तो उनके ऊपर हम एक चर्चा करेंगे। आज हम गीता का परिचय देंगे और अगले 5 दिनों में गीता के जो 5 मुख्य विषय हैं, विषय वस्तु हैं, उनके ऊपर अध्ययन करेंगे। और जब हमारा ये 6 दिवसीय सत्र खत्म हो जाएगा उसके बाद हम आगे एक एडवांस कोर्स भी शुरू करेंगे। तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं जिनको एडवांस भगवत गीता का अध्ययन करना है। नियमित रूप से हम संडे को रखेंगे, जहां तक है हर संडे को रहेगा, तब हम उसको देख सकते हैं। लेकिन हमारा जो ये प्रोग्राम है ये हमारे आगे के अध्ययन के लिए, गहरे अध्ययन के लिए ये एक नींव रखेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे ये जो 6 दिवसीय सत्र है उसका उद्देश्य क्या है और उसका एम क्या है। तो लक्ष्य हमारे इस जो 6 दिवसीय सत्र का लक्ष्य यह है कि हम भगवत गीता के मूल संदेश को समझें। भगवत गीता के संदेश को हर कोई अलग अलग संदेश बताता है। कोई बोलता है कि भगवान ने यही संदेश दिया है कि बस अपना कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। कोई बोलता है कि भगवान, कोई लोग ये भी बोलते हैं कि भगवान ने तो युद्ध करने के लिए बोला है उसमें।
अर्जुन को युद्ध करने के लिए बोला है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, तो सब लोगों का अलग अलग है, लेकिन भगवान के हिसाब से भगवत गीता का मूल संदेश क्या है उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। इसके अलावा हमारी पहचान की स्पष्टता प्राप्त करें, यानी हमारी आइडेंटिटी क्या है, हम कौन हैं, भगवान से हमारा क्या संबंध है, और भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए जो हमारा संबंध अभी टूट गया है इस भौतिक जगत में आके, उसको दोबारा किस तरह से हम स्थापित कर सकें। इसके अलावा जो मैंने बोला संबंध दोबारा स्थापित कर सके, तीसरा पॉइंट आप देखेंगे तो सर्वशक्तिमान के साथ संबंध विकसित करें और जीवन के मूल्यों से जुड़ें। तो आज की सोसाइटी में हम देखते हैं कि जो वैल्यू सिस्टम है धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, ना तो स्कूलों में वैल्यू सिस्टम सिखाया जा रहा है सही से, और ना माँ बाप भी इतने बिजी हो गए हैं कि वो संस्कार जो है, कृपया बाकी सब लोग म्यूट पे जाएंगे ताकि थोड़ा डिस्टरबेंस कम होएगा। हाँ, धन्यवाद। तो जो वैल्यू सिस्टम खत्म हो जा रहा है उसको हमको दोबारा से उनको अपनाने की जरूरत है, और अपने बच्चों को वो वैल्यू सिस्टम सिखाने की जरूरत है जो संस्कार जरूरी हैं हमारे जीवन के लिए। तो भगवत गीता से हम वो भी सीख सकते हैं। और इस का उद्देश्य क्या है इन सब का, कि शाश्वत आनंद और शांति पाने के लिए भगवत गीता का व्यवहारिक दृष्टिकोण, मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भगवत गीता की हम देखेंगे कि किस तरह से हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि दुनिया में बहुत सारे मैसेज हमको डेली आते रहते हैं, ज्ञान के मैसेज, लेकिन उनका एप्लीकेशन करना जरूरी है। अगर हम अप्लाई नहीं करते हैं और सिर्फ ज्ञान की बातें करें तो उससे कुछ फायदा नहीं है। तो इसीलिए भगवत गीता किस तरह से हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं इसके भी हम चर्चा करेंगे, और उसका फायदा क्या होगा, उससे हमको शाश्वत आनंद यानी एटर्नल ब्लिस और शांति, पीस प्राप्त होगी। तो इन सब पे हम चर्चा करेंगे डिटेल में। अभी हम भगवत गीता के कुछ तथ्यों को जान लेते हैं। तो भगवत गीता जो शब्द है उसका अर्थ क्या है। भगवत मीन्स भगवान, और गीता मीन्स सॉन्ग, भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत, क्योंकि भगवान ने वर्ष बोले हैं तो उनको एक गीत के रूप में गा के हम बोल सकते हैं, इसलिए भगवत गीता परमेश्वर का व्यक्तिगत रूप से गाया हुआ गीत। सर्वोच्च भगवान ने जो स्वयं कुरुक्षेत्र के मैदान में बोला अर्जुन को, वो गीत सीधे सीधे भगवान कृष्ण द्वारा बोली जाने वाली भगवत गीता है। और ये एक संवाद किसके बीच में, मनुष्य और सर्वोच्च भगवान। मनुष्य कौन, अर्जुन। अर्जुन एक क्षत्रिय थे, एक गृहस्थ थे, और उनके मन में जो विचार उत्पन्न हुए, जो असमंजस के भाव उत्पन्न हुए, जो उनको समझ में नहीं आ रहा था, धर्म संकट लग रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं, या लड़ाई करूं कि नहीं करूं, युद्ध करूं कि नहीं करूं, उसके बारे में एक वार्तालाप है। भगवान किस तरह से उनकी शंकाएं मिटाते हैं, किस तरह से उनको ज्ञान प्रदान करते हैं, और उसके बाद में अर्जुन युद्ध के लिए तैयार होते हैं। तो ये वो वार्तालाप है। तो भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, और लगभग 40 मिनट की बातचीत है भगवान के और अर्जुन के बीच में। आखिरी बार जब ये बोली गई थी भगवत गीता लगभग 5180 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने बोली थी अर्जुन को। लेकिन भगवत गीता पहली बार तब नहीं बोली गई थी। भगवत गीता सबसे पहले, भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन ने भगवान कृष्ण ने विवस्वान यानी सूर्य देव, सूर्य के जो देव हैं उनका नाम है विवस्वान, वही सारे ब्रह्मांड के सूर्यों की देखरेख करते हैं। तो उनको सबसे पहले भगवान ने इसका ज्ञान दिया था। लेकिन धीरे धीरे लाखों साल बीत गए और परंपरा टूट गई और वह ज्ञान लुप्त हो गया। इसीलिए दोबारा से उस ज्ञान को पृथ्वी पे लाने के लिए भगवान ने उसे अर्जुन को सुनाया, और दिव्य दृष्टि के कारण संजय ये सब देख पाया। तो संजय ने ये सब कुछ देखा क्योंकि उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी वेद व्यास के द्वारा। और संजय धृतराष्ट्र के सारथी थे और धृतराष्ट्र जानना चाहते थे कि युद्ध में क्या हो रहा है, इसीलिए संजय ने अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करके युद्ध में जो भी हाल हो रहा है और वो सुनाया। और इसी तरह उन्होंने भगवत गीता भी सुनी कि किस तरह भगवान अर्जुन का भ्रम दूर कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आप जैसे कई लोगों ने यहाँ पे लिखा कि पढ़ा लेकिन समझा नहीं।
तो क्यों नहीं जैसे धृतराष्ट्र ने भी सुना, हमने देखा कि धृतराष्ट्र ने भी सुना, संजय ने उनको बताया और अर्जुन ने भी सुना, तो अर्जुन क्यों समझ पाए और धृतराष्ट्र क्यों ना समझ पाए? कोई इसका आंसर देना चाहेगा? क्या कारण था कि धृतराष्ट्र ने भी वही ज्ञान सुना जो अर्जुन ने सुना था, लेकिन धृतराष्ट्र को वो ज्ञान समझ नहीं आया, लेकिन अर्जुन समझ गए? टाइप कर सकते हैं आप चैट में। अर्जुन विक्रम भक्ता, पूर्वेश प्रभु बोल रहे हैं, जील प्रभु बोल रहे हैं बिकॉज हम उतने कृष्ण से कनेक्ट नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो जब आपको कोई ज्ञान चाहिए रहता है तो सबसे पहले उसका बहुत जरूरी चीज क्या है? सरेंडर। सरेंडर, शरणागति लेनी पड़ती है गुरु की। जब तक हम गुरु की शरणागति नहीं लेते हैं तब तक वो ज्ञान गुरु हमसे उसको साझा नहीं करते हैं। और धृतराष्ट्र में एक ईर्ष्या का भाव था। भगवान अर्जुन से बोलते हैं कि मैं तुम्हें ये ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे मित्र हो और तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, भगवत गीता में बोलते हैं। तो ये एक भाव है। और दूसरा भाव क्या है? 4.34 में भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, तद्वित्ति प्रणिपाते ना। तो ये बोलते हैं भगवान उस श्लोक में कि किस तरह से तुम को अगर ज्ञान चाहिए तो तुम्हें बहुत ही हम्बलनेस के साथ, बहुत ही सरेंडर के भाव के साथ, समर्पण के भाव के साथ तुमको एक गुरु से इसका रिक्वेस्ट करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। और तब वो गुरु तुमको वो सत्य, परम सत्य बता सकते हैं क्योंकि उन्होंने परम सत्य देखा है। तो ये भी बहुत जरूरी है कि हमें एक योग्य गुरु के पास जाएं। जो खुद ही सक्षम नहीं है वो आपको क्या बताएगा? इसीलिए सक्षम गुरु के पास जाके उनकी सेवा भाव से, उनके साथ बहुत ही समर्पण के भाव से हमको ये ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। तो भगवत गीता के बारे में और कुछ तथ्य क्या है कि भगवत गीता कहाँ पे आता है शास्त्रों में? तो भगवत गीता महाभारत के एक उपकथा के रूप में प्रकट होता है। तो महाभारत की रचना किसने करी? 5000 साल पहले महर्षि वेदव्यास ने करी। और लिखा किसने? हमारे महादेव के पुत्र श्री गणेश ने उसको लिखा। वेदव्यास उनको बोलते गए और गणेश जी ने उसको रचा। और इसी महाभारत की एक उपकथा के रूप में प्रकट होती है भगवत गीता। तो भगवत गीता क्या है? युद्ध के मैदान में महान दार्शनिक और धार्मिक संवाद। यहाँ धार्मिक का अर्थ रिलीजियस नहीं है, धार्मिक का अर्थ है कि व्यक्ति की क्या क्या भगवान के प्रति ड्यूटीज हैं, क्या धर्म है भक्ति का। धर्म का हिंदी में जो अर्थ है, संस्कृत में जो अर्थ है, वो एक्चुअली नॉट एग्जैक्टली रिलीजियस आता है। उसका अर्थ होता है कि एक पर्टिकुलर समय पे आपका क्या धर्म है, आपका क्या ड्यूटीज है, दैट इज कॉल्ड धर्म। इसलिए हम बोलते हैं कभी कभी धर्म संकट में पड़ गए हैं। धर्म संकट का क्या मतलब होता है कि एक समय में मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपना ये धर्म निभाऊं, ऑफिस का धर्म निभाऊं, घर का धर्म निभाऊं, पति होने का धर्म निभाऊं या पिता होने का धर्म निभाऊं, उसको हम धर्म संकट बोलते हैं। तो ये उन्हीं ड्यूटीज के बारे में कि भगवान के प्रति हमारा क्या धर्म है। और हमें हमारे जो धर्म का नाम भी आप देखेंगे, सनातन धर्म। सनातन धर्म का मीनिंग सनातन रिलीजन नहीं है, सनातन धर्म का मीनिंग है कि हमारी एटर्नल ड्यूटी क्या है। एटर्नल ड्यूटी, सनातन धर्म को अगर हम ट्रांसलेट करें तो उसका अर्थ होता है एटर्नल ड्यूटी। मेरा शाश्वत धर्म क्या है? भगवान के प्रति सरेंडर और भगवान के प्रति प्रेम, यही शाश्वत धर्म है। तो अगर हम आगे देखें तो भगवान श्री कृष्ण द्वारा बोली गई, और जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता बोली तो अर्जुन ने उन निर्देशों को प्राप्त किया और समझा। तो अगर आप पहला चैप्टर भगवत गीता का देखेंगे तो अर्जुन बोलते रहते हैं, बहुत सारी चीजें बताते हैं, बहुत सारे रीजन देते हैं कि क्यों मैं युद्ध नहीं करना चाहता, लेकिन तब तक भगवान उनको कोई निर्देश नहीं देते हैं। जब अर्जुन अपने धनुष को नीचे रख देते हैं और अपने नीस पे आके भगवान से पूछते हैं कि कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव पृच्छामि ध्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, तब भगवान उनको बताते हैं। जब भगवान बोलते हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपका शिष्य हूं और आप मुझे बताइए क्या करना है। जब वो समर्पण करते हैं तब श्री कृष्ण बोलना आरंभ करते हैं सेकंड चैप्टर में।
तब सबसे पहले उनको ज्ञान देते हैं आत्मा का। तो वो हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। तो गीता का महात्म्य श्रीपाद शंकराचार्य द्वारा रचित गीता महात्म्यम है। और गीता महात्म्यम में वो गीता की महिमा सुनाते हैं श्रीपाद शंकराचार्य। तो उसका फर्स्ट जो श्लोक है वो हमको पढ़ना चाहिए गीता के बारे में चर्चा करने के पहले। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम या पठेत प्रहता पुमान विष्णु पदम अवापनोति भय शोकादि वर्जिता। इसका मतलब क्या है कि जो गीता एक ऐसा शास्त्र है, जो एक दिव्य शास्त्र है, और व्यक्ति को ये बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगर प्रॉपरली किसी व्यक्ति ने भगवत गीता में जो लिखा है उसको फॉलो किया, उनके निर्देशों का पालन किया, तो वो दुनिया की सारी दुखों से और एंजाइटीज से जो जीवन में उत्पन्न होती है उससे फ्री हो जाता है, लिबरेट हो जाता है, और उसका जो नेक्स्ट जीवन है वो स्पिरिचुअल होता है। स्पिरिचुअल जीवन का क्या मतलब है? वो भगवान के धाम को प्राप्त होता है। शंकराचार्य ये बोलते हैं गीता महात्म्य में। अब अगला प्रश्न ये हो सकता है कि मैं गीता का अभ्यास क्यों करूं? ठीक है भाई, इतना ये सब है, लेकिन मुझे क्या जरूरत है गीता का अभ्यास करने का? तो गीता का अभ्यास करने से क्या फल होगा? जब गीता में जो ज्ञान दिया गया है वो एक दिव्य ज्ञान है, और जब हम उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तब हम जीवन के तुच्छ गुणों से शुद्ध हो जाते हैं। जो लोअर क्वालिटीज हैं, जैसे क्या क्या है, काम, क्रोध, लोभ, लब लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, इग्नोरेंस, एंगर, फॉल्स प्रेस्टीज, प्राइड, अटैचमेंट, ग्रीड, यही जो 6 हैं। तो ये जो गुण है इससे हमको मुक्ति प्राप्त होती है। ये जनरली जीवन के निम्न श्रेणी में जो लोग रहते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं, और अज्ञानी लोगों में पाए जाते हैं। निम्न श्रेणी से क्या मतलब है? जीवन के रूपों, निम्न रूपों का, जैसे कुछ जो लोग बिल्कुल भी समझ नहीं पाते किसी चीज को, हाँ, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उनका सिर्फ काम है सिर्फ खाना पीना, इसके अलावा वो लोग सोच ही नहीं सकते। तो उन लोगों में ये गुण पाए जाते हैं। तो इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। भगवत गीता का ज्ञान हमें जीवन के उद्देश्य का एहसास कराता है। तो हमारे जो जो जीवन है, इसका एक पर्पस है, इसका एक ध्येय है, इसका एक एम है, जिसको हमको मनुष्य जीवन में ही हम उसको पूरा कर सकते हैं। अगर हम जानवर के जीवन को देखें तो एक जानवर क्या भगवान की भक्ति कर सकता है? क्या वो भगवान का ध्यान करता है? नहीं, उसका जीवन इंस्टिंक्ट बेस है। वो सिर्फ खाने पीने में, उसको खाना मिल गया खा लेता है, और उसके बाद उसको बस अपना डिफेंस करने का रहता है, कहीं पे दूसरा जानवर आके ना मार दे, और अगले दिन फिर वो जाने जाएगा। अगर हमारा जीवन में भी हम यही कार्य करें तो हमारे और जानवर में क्या अंतर है? तो अगला है हितोपदेश में भी इस श्लोक आता है, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च। तो उस श्लोक में भी यही बताया गया कि ये जो 4 एक्टिविटीज हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये तो जानवर भी कर रहे हैं। अगर हम भी उस सिर्फ यही 4 चीजों में लिप्त रहे और जीवन के जो ऊंचे उद्देश्य हैं उसको नहीं जान पाए, तो हमें और जानवर में कोई अंतर नहीं है, बस जस्ट सोशल एनिमल बोल सकते हैं फिर हम। लेकिन अगर हमको अपने जीवन को सफल करना है तो जीवन के जो हायर उद्देश्य हैं उनको हम भगवत गीता के द्वारा समझ सकते हैं और उनको पूरा भी कर सकते हैं। हमें जीवन के उच्च गुणों का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है। तो जो उच्च गुण हैं, जैसे ऑस्टेरिटी, सेंस कंट्रोल, स्टडी ऑफ वेदास, एक्सेप्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर और स्पिरिचुअल नॉलेज, तो इस तरह से जब हम सत्वगुण में आते हैं तो हम इन सब चीजों की प्राप्ति कर सकते हैं, इन सब चीजों का पालन करके भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। और आत्मसंयम, संतोष और सद्गुणों में रहना सिखाता है। तो आत्मसंयम आप देखें, सेल्फ कंट्रोल, संतोष यानी हम किस तरह से अपने को किसी भी परिस्थिति में संतोष से रह सकते हैं। अगर जो व्यक्ति संतोष नहीं करता है वो कभी भी खुश नहीं होता है। आज वो 1 लाख रुपए की जॉब कर रहा है, कल को 2 लाख की करेगा तो भी उसको संतोष नहीं आएगा, तो वो आगे उसकी ग्रीड बढ़ती जाती है और वो कभी भी खुश नहीं रहता है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई उसको किसी को देख के वो दुखी रहता है कि अरे यार वो आदमी मुझसे ज्यादा रिच है। आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल भी बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हमारी लाइफ की वैल्यूज कम होती जा रही हैं वैसे वैसे हमारा सेल्फ कंट्रोल भी कम होता जा रहा है और हम गलत कार्यों की तरफ बढ़ते हैं। और सद्गुणों में रहना भी सिखाता है गीता का ज्ञान कि किस तरह हम अच्छे क्वालिटीज में रह सकते हैं।
और व्यक्ति की सोच को, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, उसको ऊपर उठाने का मदद करता है। जो अब हमारा अभी विजन है वो बहुत मटेरियलिस्टिक विजन है कि हम भौतिक स्तर पे ज्यादा सोचते हैं और हमारी सोच एक थोड़ी लिमिट हो जाती है। लेकिन जब हम एक स्पिरिचुअल विजन से सोचते हैं तो हमारा विजन बहुत ब्रॉड होता है। और इन सब का परिणाम क्या है? शाश्वत आनंद और बुद्धि के उच्च स्तर है, यानी जो एटर्नल ब्लिस, और बुद्धि के उच्च स्तर यानी हायर कॉन्शियसनेस। हमारा विजन बहुत ब्रॉड हो जाता है भगवत गीता का नियमित अभ्यास करने से। हमारे भगवत गीता के जो नायक हैं भगवान श्री कृष्ण, उनके बारे में कुछ देखते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष हैं। भगवान श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। और भगवान रसराज हैं। भगवान के अपने भक्तों के साथ अलग अलग तरह के रसों का आदान प्रदान करते हैं। और भगवान पूर्ण है, वो अपने नाम रूप गुण लीला से भिन्न नहीं है। यहाँ पे हम देखेंगे संसार में किसी व्यक्ति का नाम कुछ है लेकिन उनका जो गुण है वो बिल्कुल ही अलग रहते हैं उससे, वो बहुत ही डिफरेंट रहते हैं। लेकिन भगवान का अलग अलग नाम है उनकी क्वालिटीज के ऊपर। कृष्ण मतलब सर्वाकर्षक, कृष्ण मतलब श्याम वर्ण का भी होता है और सर्वाकर्षक भी होता है कि जो जो सबको आकर्षित कर सके, वो कृष्ण है। विष्णु यानी सर्वव्यापी, हर जगह मौजूद। इस तरह से भगवान के अलग अलग नाम हैं जो भगवान की अलग अलग क्वालिटीज को बताते हैं। और जब हम भगवान का नाम लेते हैं या उनके रूप का ध्यान करते हैं या उनके किसी गुण की चर्चा करते हैं या उनकी किसी लीला की चर्चा करते हैं, तो अब हम भगवान के संग कर रहे हैं। तो आप ये ना सोचिए कि कृष्ण अलग हैं, कृष्ण मुझे दर्शन देंगे तभी मैं कृष्ण का संग कर रहा हूँ। नहीं, आप उनका नाम ले रहे हैं तब भी आप उनका संग कर रहे हैं, और आप उनके रूप पे चर्चा कर रहे हैं या गुण पे चर्चा कर रहे हैं या लीला का ध्यान कर रहे हैं, तो आप कृष्ण के साथ हैं। तो ये इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट, इसलिए भगवान को पूर्ण कहा जाता है। भगवान सभी भौतिक दोषों से परे हैं, भ्रम और दूषण से मुक्त हैं। तो भगवान जब यहाँ पे अवतार भी लेते हैं तो उनको कोई भौतिक जो गुण है, सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण, उन पे भगवान का प्रभाव नहीं पड़ता है उनका। भगवान किसी माया में नहीं पड़ते हैं और उनके ऊपर कोई दूषण भी नहीं होता है, वो इन सब चीजों से मुक्त हैं। और यहाँ पे सिर्फ वो भगवान अपनी लीला करते हैं। और भगवान का जो संदेश है उसको हम किस तरह से समझ सकते हैं? भगवान का संदेश हम डायरेक्ट गीता पढ़ते हैं तो हमको कभी कभी समझ नहीं आता है, काफी टाइम पढ़ने के बाद भी। तो उसको हमको समझना है, परंपरा में आने वाले महान गुरुओं के द्वारा समझा जा सकता है। जैसे श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता एज इट इज लिखा है। तो जब भगवान ने परंपरा में यह संदेश दिया, गीता का संदेश, जैसे बताया है कि अर्जुन को दिया, उसके बाद परंपरा में ये ज्ञान चला आ रहा है। तो इसमें आप देखेंगे कि भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी से नारद को आया, जो हमारी परंपरा है। जैसे इस तरह की 4 परंपराएं वैष्णव परंपरा ब्रह्मा से आती हैं, एक परंपरा लक्ष्मी जी से आती है, एक परंपरा रुद्र यानी शिव जी से आती है, और एक परंपरा चतुष्कुमार से आती है। तो ये 4 वैष्णव संप्रदाय हैं। तो हमारी जो परंपरा है वो ब्रह्म परंपरा है। तो ब्रह्मा जी के बाद नारद, नारद के बाद व्यासदेव, और ऐसे करते करते शिला प्रभुपाद तक आती है। और शिला प्रभुपाद ने जो अपने परंपरा में जो ज्ञान आया हुआ है उसको बुक्स में लिखा है। और हम किसी गुरु के द्वारा ही इन संदेश को अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति कुएं में गिर गया है तो उसको बाहर से कोई निकाल सकता है, क्योंकि कुएं में से उसका चढ़ के आना तो मुश्किल है, उसको कोई बाहर से रस्सी देगा तभी वो बाहर निकल सकता है। तो इसी तरह जो गुरु जिसको इसका परम सत्य का ज्ञान है, वही हमको यहाँ से वो ज्ञान देके बाहर निकाल सकता है। तो भगवत गीता के जो 5 प्रमुख विषय हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले 5 दिनों में। तो वो कौन कौन से 5 प्रमुख विषय हैं? तो पहला जो विषय है वो है ईश्वर। ईश्वर यानी भगवान। ईश्वर का जो लिटरल मीनिंग होता है इंग्लिश में वो होता है कंट्रोलर। तो ऐसे तो बहुत सारे कंट्रोलर हैं, लेकिन परम ईश्वर भगवान है। तो ईश्वर के बारे में भगवत गीता में क्या दिया गया है वो हम जानेंगे। दूसरा जो प्रमुख चीज है भगवत गीता में वो है जीव। जीव कौन है? लिविंग एंटिटीज, यानी हम, पेड़ पक्षी, जो जितने भी तरह के जीव जंतु हैं वो सभी जीवात्माएं हैं। तो इन सब के अंदर जीवात्मा है।
तो जीवात्मा भी भगवान की एक शक्ति है, भगवान के ही अंश है और तटस्थ शक्ति बोलते हैं। तो भगवान की जो तटस्थ शक्ति है वो जीवात्माएं हैं, असंख्य जीवात्माएं जिनको काउंट करना पॉसिबल नहीं है, वो सारी जीवात्माएं हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। और इसके बारे में तीसरे दिन हम जानेंगे प्रकृति के बारे में। प्रकृति यानी नेचर, और प्रकृति के जो 3 गुण हैं जिनके कारण हर एक व्यक्ति की एक अलग अलग सोच है, अलग अलग तरह का बिहेवियर है, वो क्यों होता है, वो प्रकृति के 3 गुणों के कारण होता है, सत्व, रजस और तमस। तो इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे एक दिन। और उसके बाद है काल। तो जो काल है, इन जस्ट अ मिनट, हाँ, तो जो काल है उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे कि काल किस तरह से सब चीजों का अंत करता है। बड़े बड़े साम्राज्य, बड़े बड़े महान राजा, मुगल्स, सिकंदर महान, हमारे यहाँ के अशोक और बड़े बड़े सम्राट, सब कहाँ हैं आज? सब लोग अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते थे, लेकिन काल के आगे किसी की नहीं चलती। और ये सिर्फ एक समय की बात है कि मनुष्य भी जो आज अपने आप पे बहुत घमंड करता है वो भी धीरे धीरे वृद्ध होएगा, उसका मृत्यु होगी। तो काल के बारे में हम चर्चा करेंगे। और जो 5वां बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कर्म। तो जो भी कार्य हम करते हैं वो कर्म में आते हैं। और कर्म 3 तरह के होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म यानी अच्छे कार्य जो एज पर द वैदिक स्क्रिप्चर्स के जो रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से जो कार्य किए जाते हैं वो कर्म में आते हैं। अकर्म यानी भक्ति के में काम किया जाता है, जो भगवान की सेवा, वो अकर्म में आता है, वो किसी कर्म जनरेट नहीं करता है। और तीसरा प्रकार है विकर्म, जो वैदिक स्क्रिप्चर्स की अनदेखी करके अपने लिए किया जाता है, सेल्फिश बिहेवियर से, वो विकर्म होते हैं, सिंस। तो इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इनमें से जो 4 चीजें हैं, ईश्वर, काल, जीव और प्रकृति, वो चारों शाश्वत हैं, यानी एटर्नल है। इनको आप चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि ईश्वर आज एक है तो कल कोई और बन जाएगा, नहीं। जीव जीव भी भगवान के समान ही एटर्नल है, सच्चिदानंद है, वो भी शाश्वत है। तो जीव भी चेंज नहीं होते हैं, मतलब जो आत्मा स्वरूप में जो प्योर उनका कॉन्शियसनेस है वो कभी चेंज नहीं होता है। यहाँ पे अलग अलग स्वरूप जरूर ले रहे हैं लेकिन आत्मा का स्वरूप चेंज नहीं होता है। और प्रकृति प्रकृति भी एक यहाँ पे शाश्वत है। काल भी शाश्वत है, समय हमेशा चलता रहता है। और जो कर्म है इनमें हमको चेंज संभव है, हम अपने कर्म बदल सकते हैं। यही एक इन 5 विषयों में एक ऐसी चीज है जिसको बदला जा सकता है। अब आगे हम देखेंगे कि जो बहुत सारे प्रश्न हम सभी के पास होते हैं अध्यात्म को लेके, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। सब लोगों का ये प्रश्न जरूर रहता है कि जैसे ही अध्यात्म की बात आती है तो सबसे पहले यही पूछते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। रेफरेंस के लिए बताते हैं कि अरे मेरा एक दोस्त था, कितना अच्छा था, कभी किसी का कुछ नहीं करता था, उस एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। या कोई एक आदमी बहुत बुरा है, सबके साथ हमेशा गड़बड़ करता रहता है, लेकिन उसको तो बहुत अच्छा होता जा रहा है, उसके पास बहुत पैसा आता जा रहा है, बहुत सफलता मिलती जा रही है, ऐसा क्यों होता है। और जब ये प्रश्न आता है तो नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है कि भैया ईश्वर का कोई अस्तित्व है भी कि नहीं, कि ये सब सिर्फ कपोल कल्पना ही है कि ईश्वर होते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है वो है कि मैं कौन हूँ। जनरली ये प्रश्न कब आता है लोगों के मन में, जब बहुत परेशान हो जाता है कोई व्यक्ति जिंदगी से, तो कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, आखिर मेरा हूँ कौन, मैं क्यों इस जीवन में आया, क्या गलती थी मेरी, क्यों मेरे ऊपर ये सारी चीजें फोर्स की गई, तो मैं कौन हूँ। इसके अलावा प्रश्न आता है कि किस तरह से ऐसा हो सकता है कि मैं हमेशा अनंत आनंद प्राप्त करें, कभी कोई गड़बड़ ना हो, हाँ?
कभी कुछ परेशानी ना आए और हमेशा खुशियां ही बने रहे, क्योंकि भौतिक जीवन में आप देखेंगे कि सुख और दुख हमेशा बने रहते हैं, कोई परमानेंटली ऐसा नहीं है कि खुशियां ही खुशियां आए जा रही हैं, कुछ ना कुछ डिस्ट्रेस चलता ही रहता है और प्रॉब्लम्स ज्यादा रहती हैं जनरली, खुशियां लिमिटेड रहती हैं। और इस कारण से ये प्रश्न भी आता है कि क्या कैसा करें कि हमें हमेशा आनंद मिलता रहे। और भी प्रश्न होते हैं, इतने सारे धर्म क्यों हैं, केवल एक भगवान, अगर भगवान एक है तो इतने सारे धर्म क्यों बने। हम्म? और ये भी प्रश्न होता है कि ये डेस्टिनी भी कुछ होती है कि ये हम ही भाग्य बनाते हैं या भाग्य हमें बनाता है। ये भी प्रश्न होता है। कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं, अपने कर्म से ही केवल सब कुछ होता है, ये सब बातें हैं भाग्य की। और कई लोगों का कहना है कि नहीं, भाग्य सब कुछ होता है। तो ये सब प्रश्नों के उत्तर भी गीता में हमको मिलते हैं, और इसके अलावा ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको गीता में मिलेंगे। तो आध्यात्मिक विषय सीखने की क्या आवश्यकता है। भौतिक विषय हैं, भौतिक विषय क्या है और आध्यात्मिक विषय क्या है, इनमें हम अंतर देखेंगे। तो भौतिक विषय क्या है कि भौतिक विषय हमें केवल ये समझने में मदद करते हैं कि पहले से क्या मौजूद है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम काफी सारा स्पेस में एक्सप्लोरेशन करते हैं और समझते रहते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, वो ब्लैक होल कैसे काम कर रहा है, ग्रह के कैसे कक्षा में घूम रहे हैं, उनके बारे में बहुत सारी चर्चा चलती रहती है, मार्स पे जीवन है कि नहीं है, इस तरह से। और काफी सारे आपने साइंस जो फॉलो करते हैं उनको ये भी पता होगा कि एक ही चीज पे काफी सारी थ्योरीज भी रहती हैं। जैसे ब्रह्मांड कैसे बना, तो उसमें आप देखेंगे कि बिग बैंग थ्योरी है, फिर स्टेडी स्टेट थ्योरी है, उसके बाद स्ट्रिंग थ्योरी है, और अभी तो असंख्य थ्योरी आ गई है। मैं कभी कभी देखता हूँ तो न्यूज में आता रहता है कि हाँ ये भी है, नया थ्योरी आ गया है, साइंटिस्ट ने सब पुरानी थ्योरी को गलत साबित कर दिया। तो इस तरह से भौतिक विषय में पहले से जो चीजें मौजूद है उनके बारे में जानकारी मिलती है, और ज्यादा से ज्यादा वो लोग जो ऑलरेडी मौजूद है उनको थोड़ा मिला के कुछ एक चीज बनाते हैं। लेकिन जनरली एक्सप्लोरेशन जो ऑलरेडी चीजें हैं उनके बारे में एक्सप्लोर करते रहते हैं। लेकिन इन सब से हम देखेंगे कि मानव जाति ने इतने सारे इन्वेंशन किए, इतने सारे डिस्कवरी किए, लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई। प्रॉब्लम्स जो थी पहले, अभी भी प्रॉब्लम्स, ऐसा नहीं है कि उन्नति हो गई तो प्रॉब्लम्स हमारी खत्म हो गई हैं। हाँ, मृत्यु खत्म हो गई है, या कुछ बुढ़ापा खत्म हो गया है, या स्ट्रेस खत्म कर दिया है कुछ दवाई देके कि भाई किसी को स्ट्रेस ही ना होगा, तो पीड़ा तो अभी भी बनी हुई है। वहीं पे हम आध्यात्मिक विषय की तरफ देखें तो क्या होता है, आध्यात्मिक विषय जो है वो हमको जीवन में एक सच्चा मार्गदर्शक खोजने में मदद करते हैं। जब हम आध्यात्म की तरफ जाते हैं तो हमें अपने जीवन का सही जो उद्देश्य है वो समझ में आता है। उसके अलावा हमको सफलता किस तरह से प्राप्त की जा सकती है, सफलता का रहस्य क्या है, किस तरह से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, ये आध्यात्म से हमको पता चलता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु आर यू। अगर कोई आपसे पूछे हु आर यू, तो आप बोलेंगे कि मेरा नाम, जो भी आपका नाम है, मैं बोलूंगा मेरा नाम सुमित उपाध्याय है। फिर से अगर वो प्रश्न पूछेगा हु आर यू, तो मुझे लगेगा शायद मुझसे पूछ रहे हैं कौन हो, मतलब कहाँ काम करते हो, अच्छा मैं ये कंपनी में काम करता हूँ, ये मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। नहीं नहीं भाई, हु आर यू अगर फिर से पूछा तो मुझे लगेगा शायद से मेरी जाति पूछ रहे हैं, ब्राह्मण हूँ, या मैं यूपी से हूँ, या मैं बेंगलोर से हूँ। ऐसे अलग अलग उपाधियां मिली हुई हैं हर व्यक्ति को, तो हु आर यू के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। नहीं, कोई बोल सकता मैं इंडियन हूँ, नहीं मैं क्रिकेटर हूँ, नहीं मैं तो टीचर हूँ। अलग अलग तरह के उपाधियां हैं, रीजन भी हो सकता है आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। लेकिन ये सब क्या हमारी असली आइडेंटिटी है? हमारी असली आइडेंटिटी क्या है? हमारी असली आइडेंटिटी है कि हम सभी जीवात्मा हैं। तो जीवात्मा ही हमारी असली आइडेंटिटी है, जो हमारी शाश्वत पहचान है। और जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं तो हमको ये सारी उपाधियां मिल जाती हैं। मैं इस फैमिली को बिलोंग करता हूँ, मैं इस कंट्री को बिलोंग करता हूँ, मैं यहाँ काम करता हूँ, मैं इस ग्रुप को बिलोंग करता हूँ। तो ये सारी उपाधियां हैं। तो जब हम अपनी असली आइडेंटिटी को पहचान लेते हैं तो हमारा जो विजन है, जो हमारी मानसिकता है, वो बहुत ब्रॉड हो जाती है, क्योंकि हम ये जान पाते हैं कि हमारे आसपास भी जो लिविंग एंटिटीज हैं वो भी भगवान के एक अंश हैं। हम उनको एक कंपैशन की दृष्टि से देखते हैं, ना कि किसी शत्रुता से। और वर्ल्ड को देखने का हमारा नजरिया बहुत हद तक चेंज हो जाता है। तो भौतिक इंद्रियां हमें क्या देती हैं? भौतिक इंद्रियों से हम क्या क्या करते हैं? हमारी जो 5 इंद्रियां हैं,
हमारे जो शरीर है पंच महाभूत से बना है, और हमारे शरीर में 5 इंद्रियां हैं जो हमको इस दुनिया से इंटरैक्ट करने में मदद करती हैं। जैसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जो भी स्थूल चीजें हैं, जो ग्रॉस चीजें, उनको हम देख सकते हैं। जैसे दूसरे व्यक्तियों को देख सकते हैं, आसपास की दुनिया को देख सकते हैं। आजकल तो ज्यादातर स्क्रीन ही देखते हैं टीवी और मोबाइल फोन की स्क्रीन ही सबसे ज्यादा देखते हैं, वही काम कर रही हैं आंखें आजकल। और बाकी इंद्रियों से हम जैसे सुन सुन सकते हैं, गंध ले सकते हैं, तो हम ये भौतिक चीजों को देख सकते हैं अपनी भौतिक इंद्रियों से। आगे हम देखेंगे कि क्या भौतिक वस्तुएं स्वयं काम कर सकती हैं, या फिर उनके पीछे हमको कुछ इनपुट्स देने पड़ते हैं। तो आप देखेंगे जैसे रोबोट्स हैं, या कंप्यूटर हैं, वाहन है, वस्तुएं हैं, ये सब चीजें किसी ना किसी तरह उनको हमको या तो हमको चलाना पड़ता है उनको, या उनको कंप्यूटर को जो आप देखेंगे तो उसमें हमको प्रोग्राम्स लिखने पड़ते हैं, उनको पूरा इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, तब जाके वो किसी तरह काम कर पाती हैं। लेकिन जो नेचुरल चीजें हैं, प्रकृति निर्मित चीजें को आप देखेंगे तो वो अपने आप, उनका एक सिस्टम बना हुआ है, उस हिसाब से काम कर रहे हैं। नदियां, पहाड़ जो है, धातु, खनिज अपने आप, उनमें आप देखेंगे कि जो पेट्रोलियम है वो अपने आप बनता रहता है। हाँ, नदी अपने आप, उनका बहने का एक सिस्टम है, ग्लेशियर से शुरू होके फिर वो धीरे धीरे नीचे आती हैं। तो ये सब एक सिस्टम बना हुआ है। ब्रह्मांड का सिस्टम अगर आप देखें तो हर प्लैनेट अपने कक्षा में बिना इधर उधर जाए घूमता रहता है, और सूर्य का अपना एक सिस्टम है जिससे वो एनर्जी जनरेट करता है। सब चीजों में एक सिस्टम बना है, उसके लिए किसी व्यक्ति को जाके वहां पे उसका मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता है। लेकिन मानव निर्मित जो भी चीजें, उनको मेंटेनेंस लगता है, उनको हम को स्वयं चलाना पड़ता है। यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे हमारे शरीर का बताया गया है कि जो कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर की, हर 7 वर्ष में, जो हमारी बॉडी सेल्स हैं, ह्यूमन सेल्स हैं, हर 7 वर्ष में पूरी तरह चेंज हो जाते हैं। अगर वो पूरी तरह चेंज हो जाते हैं तो हमारे जो मेमोरीज हैं, लेकिन हम उसी को, सारी चीजें हमको याद रहती हैं कि हम जब बच्चे थे, थोड़ा कम याद रहेगा, लेकिन हमको ये व्यक्तित्व हमारा वही रहता है जो बचपन में था। अभी हमारा, हमको थोड़ा ज्यादा ज्ञान आ गया होगा, लेकिन हम वही व्यक्ति रहते हैं जो कि हम बचपन में थे। तो ऐसी कौन सी चीज है जो शरीर में नहीं बदल रही है? कोशिकाएं तो 7 साल में पूरी बदल जा रही हैं, ब्रेन की कोशिकाएं भी बदल जा रही हैं, हर चीज की कोशिकाएं बदल जा रही हैं। तो जो जीवन एनर्जी है हमारी, जीवन शक्ति जो आत्मा है, वो इस पूरे समय एक ही रहती है, और इसी कारण से वो कंटिन्यूटी बनी रहती है। नहीं तो छोटेपन से अभी तक का शरीर पूरी तरह बदल गया है, लेकिन कंटिन्यूटी बनी है, हमारा वही व्यक्तित्व है, क्योंकि वो जीवन शक्ति जो है वो इस पूरे चेंजेस को महसूस कर पाती है। और हम ये देखते हैं कि जो भौतिक वस्तुएं हैं, क्या वह स्वयं बढ़ सकती हैं या कुछ कार्य कर सकती हैं? तो ऐसा तो नहीं होता है कि अगर हम एक पत्थर को रख दें, 10 दिन बाद आके देखें तो बड़ा हो जाएगा, नहीं। या कुछ प्लास्टिक बोतल रख दी कहीं तो 2 प्लास्टिक बोतल हो जाएगी, नहीं। तो आध्यात्मिक वस्तुएं जो है, उनके पीछे एक जीवन शक्ति होती है। जैसे पेड़ पौधे हैं, मानव शरीर है, तो इन सब के अंदर जीवात्मा है, और उसके कारण से वो शरीर चल रहे हैं। तो इसके एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि जैसे बिजली होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी जब आपके जो भी घर में गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी जब तक नहीं है तब तक वो एज गुड एज डेड है। लेकिन जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं, अचानक से उनमें जिस कार्य के लिए वो बनी है, टीवी है तो टीवी चलने लगेगी, पंखा है पंखा घूमने लगेगा। तो जिस तरह से बिजली इन सब चीजों को चला रही है, उसी तरह जो हमारे अंदर की जीवन शक्ति है, आत्मा, वो हमारे शरीर को चला रही है। और जैसे ही वो आत्मा शरीर से निकल जाती है तो व्यक्ति अपनी उंगली भी नहीं उठा सकता है। उसको बाद आप उसको अगर आप उसको दर्द का एहसास भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, एज गुड एज डेड। सो हमारी बॉडी भी एक तरह से डेड मैटर है, जब तक उसके अंदर आत्मा है तब तक वो चल रही है। लेकिन एक बार आत्मा शरीर से जब निकल जाता है, उसके बाद वो जीवन शक्ति चले जाने के बाद में व्यक्ति अपना एक उंगली भी नहीं उठा सकता। तो यहाँ पे एक छोटा सा कहानी सुनाना चाहूंगा, आइजैक न्यूटन और उनके सहयोगियों के बीच की कहानी। तो आइजैक न्यूटन एक महान साइंटिस्ट हैं, आप सभी जानते होंगे। लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉज ऑफ मोशन, बहुत सारी चीजें उन्होंने दी जो साइंस में आज भी काम में आती हैं। और वो एक भगवान को मानने वाले व्यक्ति थे,
और जो उनके साथ के जो साइंटिस्ट थे वो थोड़ा उनका से टांग खींचते थे हमेशा जब भी वो बात करते थे। तो आइजैक न्यूटन हमेशा उनको बताते थे कि अगर तुम हमारे साइंस का अच्छे से अध्ययन करोगे, इस यूनिवर्स का अच्छे से अध्ययन करोगे, तो तुम देख सकते हो कि इन सब के पीछे कुछ एक ब्रिलियंट माइंड काम कर रहा है, कुछ शक्ति है जो इन सब चीजों को चला रही है। लेकिन वो लोग ये बात नहीं मानते थे और बोलते थे कि अरे तुम क्या बात करते हो, कुछ भी, तुम तो साइंटिस्ट हो, तुमको समझना चाहिए। तो एक दिन आइजैक न्यूटन ने अपने घर पे सभी मित्रों को बुलाया और उनको लंच के लिए बुलाया था। तो जब वो उनके घर आए तो वो उनको अपने घर में जो उनका एक छोटा सा ऑफिस था, लैब, वो दिखा रहे थे। तो उस लैब में एक बहुत ही सुंदर एक मॉडल, सौरमंडल का मॉडल रखा था। वो लीवर से चलता था, लीवर खींचने से, और बहुत ही सुंदर था। और वो ऑर्बिट्स में सारे प्लैनेट घूमते थे, जिस प्लैनेट का जितना ऑर्बिट का समय है उस हिसाब से, उस रेशियो में वो घूमते थे, और सूर्य बीच में। तो उनके सारे दोस्त उनको देख के बहुत हैरान रह गए, बोले कितना अच्छा सौरमंडल का मॉडल है न्यूटन, सिर्फ तुम ही ये बना सकते हो। तो न्यूटन ने मौका देख लिया और न्यूटन ने बोला नहीं, मैंने कुछ नहीं बनाया। एक्चुअली क्या हुआ, एक दिन मैं नीचे था, अचानक से मुझे एक धड़ाम की आवाज आई, बहुत जम के आवाज आई और जब मैंने ऊपर आके देखा तो यहाँ पे सोलर सिस्टम बन गया था। पहले मैंने कुछ केमिकल रखे थे यहाँ, वही सब फूट गया, चगा हुआ, और अचानक से ये सोलर सिस्टम का मॉडल बन गया। तो सारे दोस्त हंसने लगे, बोले अरे न्यूटन तुम मजाक कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, हाँ? कि कुछ केमिकल रखे और वो फूट गए और उसमें से एक सोलर सिस्टम निकल आया, मॉडल निकल आया इतना सुंदर, वो भी इतना अच्छा चलने वाला, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। तो न्यूटन ने बोला तुम इस छोटे से मॉडल के बारे में ये बात नहीं मान सकते कि ये अचानक से चांस से कुछ बन सकता है, लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड को, जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उसके बारे में, जिसमें हर चीज अपना कार्य सही ढंग से कर रही है, इतना सारा उसके पीछे साइंस बता रहे हो लगा है, तुम ये मान सकते हो कि वो सब बाय चांस से एक बड़े बिग बैंग से बन गया और यहाँ पे जीवन भी आ गया और अलग अलग तरह के इतने कॉम्प्लेक्स प्राणी बन गए, ये तुम सोच सकते हो। तब उनके दोस्तों के पास उनके बात का कोई उत्तर नहीं था। और ये हमको भी सोचने वाली बात है कि जब एक छोटा सा चीज अपने आप नहीं बन सकता है कुछ, एक छोटा सा रोबोट बनाने के लिए भी इतनी मेहनत लगती है, साइंस की कितने लोगों की मेहनत लगती है, और ये मानव शरीर जो इतना कॉम्प्लेक्स है वो किस तरह से अपने आप बन गया, ये ब्रह्मांड इतना कॉम्प्लेक्स है वो किस तरह से अपने आप बन गया, ये हमको सोचने की जरूरत है। आप में से कितने लोग एग्री करते हैं कि ये बाय चांस नहीं हो सकता है? चैट में टाइप करेंगे। उज्ज्वला माता जी, मोहित, अनिरुद्ध, आई एग्री। तो ज्यादातर लोग एग्री करते हैं इस बात से। ओके, ठीक है, हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो एक बार इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रीला प्रभुपाद से एक व्यक्ति ने पूछा कि स्वामी जी, मुझे लगता है कि ये हमारी जो शरीर है ये सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स मशीन है, हाँ? जब वो पुरानी हो जाती है और फिर खत्म हो जाती है। ये सोल वोल क्या आप बात करते हो, ये बॉडी को चला रहा है, आप क्या बात कर रहे हो? तो प्रभुपाद ने जवाब दिया कि तुम्हारी कार या कंप्यूटर बड़े होते हैं, ग्रो होते हैं, क्या ऐसा है कि तुम्हारे एक मेल कार और फीमेल कार आए और एक बेबी प्रोड्यूस करें, ऐसा होता है क्या? भगवान सॉरी प्रभुपाद ने बोला कि जो भी कोई एक लिविंग एंटिटी होती है वो अपने पूरे जीवन काल में 6 तरह के चेंजेस से गुजरती है। कौन से 6 तरह के चेंज हैं? उनका जन्म होता है, वो बढ़ते हैं, उसके बाद वो मेंटेन करते हैं अपने आप को, उसके बाद ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे वृद्ध होते हैं, उसके बाद वो उनको मृत्यु हो जाती है। तो ये 6 चेंजेस हैं जो हर लिविंग बॉडी में आते हैं, लिविंग एंटिटी में आते हैं। तो मैटर जो है सिर्फ डेप्रिशिएट होता है, लेकिन जो जो लिविंग एंटिटीज हैं उनमें ये चेंजेस होते हैं। तो जो सोल है वही लिविंग बॉडी को अलाइव रखता है, उसमें चेतना का संचार होता है। कोई बोलेगा कि मुझे सोल का कैसे होता है, मुझे पता करना है, दिखती तो है नहीं सोल। तो चेतना जो है वो सोल का सबसे बड़ा सिम्टम है। जिस भी चीज में आपको चेतना दिखे, नेचुरल चीज है वो चेतना है, तो आपको समझना चाहिए कि उसमें सोल मौजूद है कहीं ना कहीं। तो प्रभुपाद का एक छोटा सा हम वीडियो देखेंगे यहाँ पे, जिसमें प्रभुपाद इसी विषय पे बात कर रहे हैं। छोटा सा है वीडियो।
आपको आवाज आ रहा है? एक कृष्ण आ रहा है प्रभु जी, थोड़ा वॉल्यूम ओके ज्यादा। ओके। मैं बोलूंगा, बोल रहा हूँ। सर्वै गुणै तत्र समासते सुरा हराम भक्तस्य कुतो महदुना मनोरथेन असतो धावति वही. The meaning is that anyone who is God conscious, devotee, he has got all the good qualities. What we consider as good qualities, he has got. And similarly, one who is not a devotee of God, he has no good quality. Because he will hover on the mental platform. There are different platforms. Bodily concept of life, general, and this body. Therefore, my business is to satisfy the senses. This is bodily concept of life. And others, they are thinking, I am not this body, I am mind. Well, they are going on mental speculation, like philosophers, thoughtful men. And above that, there is intelligent class of men practicing some yoga. And spiritual platform is above that. First bodily concept grows, then intellectual, then spiritual. So this Krishna consciousness movement is on the spiritual platform, above body, mind and intelligence. But actually we should come to that platform because we are spirit soul. We are neither this body, nor this mind, nor this intelligence. So, one who is on the platform of spiritual consciousness, they have got everything. Intelligence, proper use of mind, proper use of the body. Everything is there. He must be at the same time, although he is hero, he must be generous. Just like Alexander the Great, perhaps you know the story, he arrested one thief. So when he was arrested and he was being judged by Alexander, the thief pleaded that what is the difference between you and me? You are a great thief, I am a small thief. So Alexander understood it and got him killed. Yes. हरे कृष्णा। यहाँ पे आपने सुना प्रभुपाद यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से जो व्यक्ति मेंटल प्लेटफॉर्म पे है वो बहुत इंटेलिजेंट नहीं है और उसमें जो क्वालिटीज हैं मटेरियल लेवल पे हमको लगेगा कि अच्छा है, लेकिन जो एक भक्त है उसमें सारी गुड क्वालिटीज हैं। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जब हम मेंटल प्लेटफॉर्म पर रहते हैं तब हम ये सोचते हैं कि मैं ये बॉडी हूँ, ये बॉडीली प्लेटफॉर्म है। उसके बाद उससे जो थोड़ा इंटेलिजेंट व्यक्ति रहेगा उसको लगेगा कि वो मैं योगा करता हूँ, different types of Ashtanga yoga he will perform and then he will think, oh I have realized. So उसके ऊपर में स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म है। तो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म जो है वो स्पिरिट के लिए, क्योंकि हम ना ये बॉडी है ना हम ये माइंड है ना हम है केवल एक स्पिरिट सोल। तो उस स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे आना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और जब हम उस स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो सारे अच्छे गुण हमारे अंदर प्रस्तुत हो जाएंगे। जैसे उन्होंने बताया अलेक्जेंडर ग्रेट के बारे में कि अगर कोई हीरो है तो उसको जेनरस भी होना चाहिए। तो अलेक्जेंडर ग्रेट का स्टोरी सुना रहे थे कि एक बार अलेक्जेंडर के एक जगह पे रुके हुए थे तो वहां पे एक चोर घुस गया और चोर कुछ चोरी कर रहा था तो उसको पकड़ लिया गया और अलेक्जेंडर के पास ले जाया गया। तो अलेक्जेंडर के पास जब वो पहुंचे तो थीफ ने बोला कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो।
मैं एक छोटा थीप हूँ और तुम एक बड़े थीप हो, मैं एक छोटा चोर हूँ, तुम एक बड़े चोर हो। तो अलेक्जेंडर सुन के बहुत शॉक हो गया कि मैं कैसे चोर हूँ। बोले मैं छोटी छोटी चीजें लूटता हूँ, दूसरों की चीजें लेता हूँ, और तुम पूरे दूसरे देश को ही लूट लेते हो। तो अलेक्जेंडर को समझ में आया, उसने उसको छोड़ दिया। तो इसलिए बताया गया कि व्यक्ति अगर महान है, उससे अलेक्जेंडर को भी महान बोला जाता है, लेकिन उसमें अच्छे गुण भी होने चाहिए। तो यही प्रभुपाद बता रहा है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएंगे। अभी थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि टाइम थोड़ा निकलता जा रहा है। वेयर डू वी गेट अवर स्क्रिप्ट्स? हम अपने मस्तिष्क में, हमारे जो ब्रेन है उसमें हम क्या जो सूचनाएं डालते हैं, जो थॉट्स डालते हैं, वो हम कहाँ से लाते हैं? तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम वही बन जाते हैं जो जहाँ जिनका संग हम करते हैं। वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो बुक्स हो सकते हैं जो आप रीड करते हैं, आप जो मूवीज देखते हैं, जो म्यूजिक सुनते हैं, उस हिसाब से आपके सोच भी बनते जाता है। तो हमको बहुत केयरफुल रहना चाहिए इन सारी चीजों के प्रति कि क्या हम अपने मस्तिष्क में डाल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह जो भी चीज हम अपने अंदर डालेंगे, जिस तरह के थॉट्स हम डालेंगे, उस तरह के हमारा नेचर बनता जाता है। तो इसको बोलते हैं गीगो प्रिंसिपल। गीगो प्रिंसिपल मीन्स गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट। अगर आप अपने दिमाग में कचरा भरेंगे, गॉसिप्स या जो भी है, तो बाहर भी वही चीजें निकलेंगी। और अगर आप अपने दिमाग में अच्छे विचार भरेंगे, पॉजिटिव चीजें भरेंगे, तो वो जो आपकी जो थॉट्स आपके बाहर निकल रही हैं, जो वो भी अच्छी रहेंगे, आपके एक्शंस भी अच्छे रहेंगे। तो इन चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसलिए भी हमको भगवत गीता जैसे ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो नॉलेज है जब हम अपने अंदर डालेंगे, तो हमारे एक्शंस में, हमारे थॉट्स में वही चीज बाहर आती है। मटेरियल व्यू पॉइंट। मटेरियल व्यू पॉइंट यानी जो एक भौतिक व्यक्ति का व्यू पॉइंट कैसा रहता है। उनको लगता है कि हम केवल ये बॉडीज हैं, मैटर की बनी हुई बॉडीज, और हमारे अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ केमिकल्स हैं। उनको लगता है आत्मा वगैरह कुछ नहीं है, और अगर हम मर जाएंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए आप पूरे लाइफ को एंजॉय कर लीजिए अच्छे से, जो जो करना है कर लीजिए, सारे एक्सपीरियंस ले लीजिए। ये जनरली एक मटेरियल व्यू पॉइंट है। लेकिन वो इस बात को नहीं देख पाते हैं कि भले ही वो जानवर हो, या वो एक मनुष्य हो, या पेड़ हो, पौधा हो, सबके अंदर भगवान की एक शक्ति जो आत्मा है, भगवान का एक अंश वो विद्यमान है, जिसके द्वारा ये सब चीजें चल रही हैं, जिसके द्वारा ये एक्सपीरियंस जो हमको हो रहा है वो हमारी आत्मा कर रही है। बॉडी हमारी सिर्फ एक यंत्र की तरह है जिसको हम चला रहे हैं, और हमारे जो सेंसेस हैं उनके थ्रू हम इस दुनिया का क्या बोलते हैं उसको, दुनिया को देख पा रहे हैं, उसको महसूस कर पा रहे हैं। तो भगवत गीता 2.13 श्लोक ये बताता है कि किस तरह से एक आत्मा जो है वो इसी शरीर में अलग अलग अवस्था से गुजरती है। तो श्लोक पढ़ेंगे हम। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरा प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। तो भगवान बोल रहे हैं इसमें कि जिस तरह शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो कई लोगों को लगता है कि अरे एक आत्मा जो बोलते रहते हैं कि उसका पुनर्जन्म होता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन हमको समझना चाहिए कि जब हम हमारा जो ये शरीर है, जब हम बचपन में थे तो हमारा शरीर बहुत छोटा सा था, क्यूट भी लगते थे थोड़े हम उस समय हैं। और अभी जब हम तरुण अवस्था में आते हैं तब भी हमारा व्यक्तित्व वही रहता है, लेकिन हमारा बॉडीली चेंजेस होते हैं, हमारा बॉडी पूरी तरह चेंज हो जाता है। फिर हम जब यौवन अवस्था में आते हैं, यौवन अवस्था के बाद वृद्ध अवस्था आती है, तो हमारी बॉडी चेंजेस होते जा रहे हैं, लेकिन हमारा व्यक्तित्व वही है। जो हमारे अंदर आत्मा है वही हमारा असली व्यक्तित्व है। और जिस तरह से इस करंट शरीर में भी ये अलग अलग शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में वृद्ध अवस्था में सेम आत्मा ही इन शरीरों से गुजर रही है, उसी तरह जब मृत्यु आ जाती है तब जो हमारा शरीर हमारे काम का नहीं रहता, तब हम दूसरे शरीर में आत्मा प्राप्त दूसरे शरीर को प्राप्त करती है। तो जब हम ये बात को समझ लेंगे तब हम धीर व्यक्ति बन जाएंगे।
तो निष्कर्ष क्या है? आत्मा को हम, जैसे हमने देखा कि हमारी भौतिक इंद्रियों के द्वारा हम भौतिक चीजों को महसूस करते हैं, लेकिन आत्मा क्या है? आध्यात्मिक वस्तु है, भगवान का अंश है। भगवान भी आध्यात्मिक है और आत्मा भी आध्यात्मिक है, इसीलिए हम भौतिक इंद्रियों के द्वारा उनको नहीं देख सकते। आत्मा को, इसको हम महसूस कर सकते हैं। महसूस करने का मैंने आपको बताया क्या तरीका है। जहां भी आपको चेतना दिखे वहां पे आप समझ लीजिए कि आत्मा का निवास है। आत्मा इस शरीर को धारण करने वाला और अपने कार्यों और इच्छाओं को क्रियान्वित करने वाला वास्तविक व्यक्तित्व है। तो इस शरीर को जो एक यंत्र की तरह उसको आत्मा चलाता है, और आत्मा इच्छा करता है और शरीर उस इच्छाओं को, उस पर एक्शन करता है। और हम हमेशा देखा जाए कि व्यक्ति दुखी क्यों रहते हैं, क्योंकि हम आत्मा के रूप में गलत जगह पे खुशी और सफलता पाने की कोशिश कर रहे हैं, भौतिक चीजों में खुशियां पाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम आत्मा के रूप में सच्चिदानंद हैं। हम हमेशा शाश्वत आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आप किसी से पूछो कि आपकी क्या इच्छा है, तो वो खुशी पाना चाहता है, आनंद प्राप्त करना चाहता है। कोई ये नहीं बोलेगा कि नहीं मुझे दुख चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आत्मा का स्वरूप है, ओरिजिनल स्वरूप है, वो सच्चिदानंद है, इसलिए वो हमेशा खुशी तलाशता है। और यहाँ पे भौतिक वस्तुओं में हमें वो परमानेंट खुशी कहीं मिलती नहीं है। थोड़े दिन के लिए खुशी मिलती है, नई कार ले ली, थोड़े दिन के लिए खुश हो गए, उसके बाद में फिर लगता है नहीं और बड़ी गाड़ी चाहिए। इस तरह से क्षणिक सुख मिलते हैं हमको यहाँ पे, और इसीलिए हम गलत जगह पे खुशी की तलाश कर रहे हैं, और इसी कारण से हमें दुख का एहसास होता है। तो इसके बारे में एक छोटी सी कहानी है कि एक व्यक्ति एक बार एक जगह पे कुछ ढूंढता रहता है, और उसको काफी देर से कुछ ढूंढता हुआ देख के पास में एक सज्जन खड़े रहते हैं। वो आते हैं और पूछते हैं कि भाई साहब आपका क्या खो गया है, आप ढूंढ रहे हैं कुछ? तो बोलते हैं अरे मेरी अंगूठी खो गई है। तो बोलते हैं अच्छा कहाँ पे खोया, कुछ आइडिया है? तो बोले यहाँ से वो 1 किलोमीटर दूर पे जगह है, वहां पे गिर गया था। तो बोलते हैं अरे अगर आप वहां पे गिरा था तो आप यहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं? बोलते हैं यहाँ पे लाइट है ना, यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ। तो इसी तरह से हम लोग भी गलत जगह पे तलाश कर रहे हैं। तो व्यक्ति वो वहां पे पूरा जीवन भी ढूंढेंगे तो उनको वो अंगूठी नहीं मिलेगी, क्योंकि अंगूठी तो कहीं अंधेरी जगह पे गिर गई थी, जहाँ जहाँ पे उनको रोशनी नहीं थी, इसलिए वो यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। तो इस तरह से हमको भी सही जगह पे अपनी खुशी तलाशनी चाहिए। और सही जगह क्या है? जब हम भगवान के साथ जुड़ते हैं, शाश्वत आनंद हमें केवल भगवान ही प्रदान कर सकते हैं। जो खुद शाश्वत है वही आपको शाश्वत आनंद प्रदान कर सकता है। तो जब हम देखेंगे कि अर्जुन को भी किस तरह समाधान मिला, जब कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने के पहले अर्जुन के पास उनका कॉन्फिडेंस पूरी तरह चला गया था, बहुत एंग्शियस हो गए थे, बहुत उनको डिमोरलाइज हो गए थे, बहुत सारा उनको स्ट्रेस आ गया था, डिप्रेशन आ गया था, ये सारी चीजों से वो त्रस्त हो गए थे, भ्रमित हो गए थे एक तरह से कि क्या करना चाहिए, क्या गलत, क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन जब भगवान से उन्होंने भगवत गीता का ज्ञान सुना, उसके बाद में उन्होंने युद्ध के लिए तैयार हो गए, और तब बोले कि भगवान अब मैं, आप जो बोले वो करने के लिए मैं तैयार हूँ, युद्ध करने के लिए भी तैयार हूँ। और उन्होंने युद्ध जीता भी। भगवान के भगवान ने निर्देश दिया कि अर्जुन की स्थिति क्या है। अर्जुन हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं एक तरह से, क्योंकि अर्जुन एक गृहस्थ भी थे और अर्जुन एक क्षत्रिय भी थे। जैसे हमारी भी ड्यूटीज रहती हैं कि हम गृहस्थ हैं और हमारे पास बाहर की भी ड्यूटीज हैं, हम कहीं काम करते हैं। अगर भगवान साधु संतों को भगवत गीता का ज्ञान देते, केवल किसी साधुओं की एक मंडली में बैठ के भगवान ज्ञान देते, तो हम लोगों को लगता है अरे ये तो साधु संतों के लिए है, हम क्यों पढ़ें, गृहस्थ हैं हम तो नहीं पढ़ना चाहिए। इसलिए भगवान ने अर्जुन को चुना उस ज्ञान को देने के लिए, ताकि सारे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो कि ये ज्ञान सभी के लिए है। और भगवान ने कृष्ण ने अर्जुन और भाइयों का समर्थन क्यों किया? क्योंकि वो सब उनके प्रति बहुत समर्पित थे, जबकि दुर्योधन उनसे ईर्ष्या करता था। जब भगवान संधि का संदेश लेके उनके पास गए थे, दुर्योधन के पास, तो उन्हें बांधना चाहते थे, वो दूत को बांधना चाहते थे, इतना ईर्ष्या था उनको। और भगवान यही चाहते हैं कि हम भी अर्जुन का स्थान लें और अपने गुणों को पूर्ण करें भगवत गीता के ज्ञान के द्वारा। ये कैसे करना है, उन्हें कैसा प्राप्त करा जाए, ये सब हमें भगवत गीता के अंदर मिलेगा। और हम जो कुछ भी कार्य करते हैं वो हमारे अगले जीवन के लिए, वर्तमान जीवन में हम उसकी नींव रख रहे हैं। तो इसलिए हमारे जो भी कार्य हम करते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, वो हमको बहुत सोच समझ के
भगवत गीता के हिसाब से हम वो सही है कि नहीं, शास्त्रों के हिसाब से सही है कि नहीं, ये सोच के हमको करना चाहिए। तो रीइंकार्नेशन पे बहुत सारे रिसर्च भी हुए हैं, जैसे कई लोगों को लगता है कि ये सही बात है कि नहीं पुनर्जन्म की, तो ये साइंटिफिक रिसर्च भी काफी लोगों ने करी है, काफी सारे डॉक्टर्स ने रिसर्च करी है रीइंकार्नेशन के ऊपर। अगर आप देखेंगे तो आपको इंटरनेट पे भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी, नहीं तो काफी बुक्स पब्लिश हुई हैं इसके बारे में जो काफी डॉक्टर्स ने लिखी हैं, अलग अलग केस स्टडी करी है। और ये अभी के समय की बात नहीं है, अभी तो आप इंफॉर्मेशन इतना ज्यादा है कि आप किसी के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं, लेकिन ये पुरानी बातें हैं जब इंफॉर्मेशन इतना आसान नहीं होता, तो दूसरे देशों की बातें कई लोगों ने बताई हैं। और इसी तरह से आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस के बारे में भी डॉक्टर एक सर्जन थे, उन्होंने अपने 30 साल के एक्सपीरियंस के बारे में, उन्होंने किस तरह के आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस उन्होंने देखे अपने ऑपरेशन थिएटर में, वो उन्होंने उसके बारे में काफी लिखा है। अब जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब हमारा आउटलुक कैसा रहता है, और जब हम एक मटेरियलिस्टिक व्यू आउटलुक रहता है तो कैसा ज्ञान रहता है। जब हमारे पास एक मटेरियलिस्टिक आउटलुक रहता है, भौतिक आउटलुक रहता है, तब हम सब अपने कुछ भी फेलियर पे हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। अरे वो तो बहुत सेल्फिश है, मेरा साथ नहीं देता है, मैं कितना लोनली फील कर रहा हूँ, मैं भी ऐसा ही करूंगा सबके साथ में, एरोगेंट बन जाऊंगा। इस तरह से हम हमेशा दूसरों को ब्लेम गेम करते रहते हैं। सो ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। हमें को ये इस प्लेटफॉर्म पे हमको ये नहीं मालूम रहता है कि जो सारे व्यक्ति हैं, सारे जीव भगवान के ही पार्ट एंड पार्सल हैं, भगवान के ही अंश हैं। लेकिन अभी इस भौतिक जगत में उनके ऊपर एक माया का प्रभाव है, ये हमको नहीं समझ में आता है। लेकिन जब हमें पास ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, पॉजिटिव आउटलुक आ जाता है, तब हम किसी को ब्लेम करने की जगह हम ये देखते हैं कि हम कैसे अपने आप कैसे बेटर बन सकते हैं, और हमारे अंदर टॉलरेंस आता है, पेशेंस आता है। हम सबको अच्छी दृष्टि से देखते हैं। तो आगामी जो सत्र होंगे उसमें हम अगले जो 5 दिनों में हम इन 5 विषयों पे बात करेंगे। कल का हमारा जो विषय होगा वो होगा ईश्वर, तो कल आप जरूर ज्वाइन कीजिए। और उसके बाद में हम जीव, प्रकृति, काल और कर्म के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो ये हमारा अगले सत्र होंगे। तो इन कोर्स से जो अगले 5 दिनों में हम बात करेंगे, उसमें एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा कि हम वैदिक संस्कृति को समझें, अपनी मानसिक शक्ति का विकास करें, शांति और खुशी किस तरह से प्राप्त की जा सकती है भगवत गीता के ज्ञान के द्वारा, वो हम जाने, जीवन के मूल्य समझें, और आत्मबोध यानी सेल्फ रियलाइजेशन, अपने खुद को जान पाए, उसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। और इस वीक के लिए, इस पूरे सप्ताह के दौरान मैं चाहूंगा कि आप अपने चारों तरफ जो भी घटनाएं होती हैं और आप जो जो सीख रहे हैं, उस ज्ञान के द्वारा आप भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रत्येक चीज को देखें। और अगर आपको कुछ चीज ऐसा लगता है कि आपको शेयर करना चाहिए, तो आप अगले सेशन में आप शेयर करें या व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें। किसी भी तरह के घटना में आपको कुछ रियलाइजेशन आता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो क्या आपको सीखने को मिला, या भौतिक दृष्टि से आप देखते हैं तो दोनों में क्या अंतर मिला, वो आप बता सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। तो इसी के साथ आज का सेशन मैं यहीं पे रोकता हूँ, और प्रश्नोत्तर के लिए मैं अपना मंच खोलता हूँ। तो आप एक एक करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई प्रश्न है या कोई कमेंट्स देना चाहते हैं, या कुछ भी कहना चाहते हैं, आप एक एक करके बोल सकते हैं। हरे कृष्णा, आपके जो भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं अभी, या कोई कमेंट क्लास के बारे में, आपको क्लास कैसा लगा, या कोई करेक्शन आप देना चाहें, कुछ फीडबैक देना चाहें, आप दे सकते हैं। हेलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। मोहित जी हरे प्रभु। कृष्णा। मैं शुरुआत का 10-15 मिनट छूट गया था, थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो उसमें क्या था? प्रभु जी, आज तो हम भगवत गीता का इंट्रोडक्शन ही देख रहे थे, तो वैसे हम ये रिकॉर्डिंग आपके साथ में शेयर करेंगे, तो आप उसमें देख सकते हैं।
तो जी। शुरू में हमने गीता का थोड़ा सा गीता क्या है, गीता का महात्म्य क्या है और गीता क्यों पढ़नी चाहिए, इन विषयों पर चर्चा की थी। तो रिकॉर्डिंग आपको कल सुबह तक या जैसा भी होगा रिकॉर्डिंग हम शेयर करेंगे, तो आप उसको देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट या फीडबैक आप देना चाहें, दे सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मतलब जहाँ तक मुझे समझ आता है कि भगवान जी को फील किया जा सकता है, प्रभु जी जी को जी दर्शन होना पॉसिबल है आज के टाइम पे। जैसे सब ऋषि मुनि कहते हैं हमने दर्शन किए, आज के टाइम पे फील करना तो पॉसिबल है, बट दर्शन पॉसिबल है क्या? वो मेडिटेशन के थ्रू होते हैं? देखिए माता जी, भगवान को प्राप्ति के लिए जो कलयुग में जो सही तरीका बताया गया है, तो वो बृहद नारदीय पुराण में कहा गया है, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। तो इस कलयुग में जो रिकमेंडेड प्रोसेस है वो है चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स। तो हर एक जो युग होता है वहां पे एक रिकमेंडेड प्रोसेस रहता है। जैसे सतयुग में रिकमेंडेड प्रोसेस था तपस्या। उसके बाद में धीरे धीरे जैसा डिग्रेडेशन आता जाता है तब, और व्यक्ति का लाइफ भी कम होता जाता है। सतयुग में लोगों का लाइफ बहुत लंबा था, तो उस टाइम तपस्या करने के लिए उनके पास टाइम था। अभी हमारा लाइफ लगभग 50-60 साल है, तो उसमें हम अगर तपस्या करने चले जाएं तो ये पॉसिबल। अगर आप देखें कि उसके बाद में त्रेता युग में जो था रिकमेंडेड प्रोसेस ऑफ रिकमेंडेड प्रोसेस था जो भगवान के लिए, वो था यज्ञ। तो बड़े बड़े यज्ञ होते थे, अश्वमेध यज्ञ, इस तरह के यज्ञ का आयोजन किया जाता है। लेकिन कलयुग में यज्ञ करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबसे पहली बात तो जो प्योर ब्राह्मण्स हैं जो उस समय होते थे, जो बहुत अच्छे उच्चारण के साथ, अच्छी कॉन्शियसनेस के साथ यज्ञ करते थे, वो उनको आजकल ढूंढना मुश्किल है। और जो सामग्री भी आती है आजकल, वो भी इतना ऐसा हो गया है कि बहुत मुश्किल से आपको शुद्ध सामग्री मिलेगा। तो उसके बाद में जब द्वापर युग में की पूजा युग धर्म था, लेकिन कलयुग में जो स्टैंडर्ड है व्यक्तियों का, वो इतना गिर गया है कि ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अर्च वगैरह की जो पूजा अगर आप सही रूप से करें, पूरे दिन में कई बार सेवा करें, तो लगभग आपका आधा दिन तो उसमें ही चला जाता है। और उतना स्टैंडर्ड से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इसीलिए कलयुग में ये मैंने आपको बताया, बृहद नारद पुराण में कहा गया है कि हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते नास्ते गतिरन्यथा। ये आप अगर ध्यान पूर्वक कर पाए तो आपको दर्शन भी हो सकते हैं। काफी भक्तों को दर्शन हुए, अभी वो बोलेंगे तो मानने वाला कोई है नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि सब चीजें पॉसिबल है। परंतु अगर एक बार दर्शन हो जाए तो किसी का मन ही नहीं करता होगा घर के काम करने में। बिल्कुल, जो भगवान के प्रेम में व्यक्ति पड़ जाता है, जो आखिरी स्टेज होती है प्रेम भक्ति, भक्ति की बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। पहले पहले तो मैं आपको स्टेजेस आगे बताऊंगा, अभी तो क्या क्या स्टेजेस होती हैं अगले सेशंस में बताऊंगा। लेकिन जो आखिरी की स्टेज है प्रेम भक्ति, उसमें एक व्यक्ति में और एक वो बिल्कुल क्या बोलते हैं, सांसारिक व्यक्ति उस व्यक्ति को मैडमैन कहेगा और वो व्यक्ति जो प्रेम भक्ति में है, वो सांसारिक व्यक्ति को मैडमैन कहेगा। दोनों एक दूसरे को पागल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की स्थिति को नहीं समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति को लगता है ये बहुत पड़ा हुआ है, सुख की प्राप्ति हो गई है, वो दया के भाव से देखेगा उससे। और ये व्यक्ति उनको देखेगा कि अरे ये व्यक्ति कुछ काम नहीं कर रहा है, ये तो बिल्कुल इसका मन कहीं नहीं लग रहा है, इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं यहाँ पे दुनिया में, उनमें ध्यान ना लगा के ये क्या कर रहा है, क्या चैंटिंग कर रहा है, क्या चीजों में पड़ा रहता है। तो ये बात भी सत्य है, भगवान के दर्शन हो जाए तो भगवान के अलावा कहीं आपको मन नहीं लगेगा।
लेकिन धन्यवाद प्रभु जी। भक्त की एक विशेषता ये है कि वो अपने भौतिक जिम्मेदारियों को भी समझते हैं और पूरी तरह निभाते भी हैं। हमें अपनी लाइफ में बैलेंस रखना है, भगवान के प्रति प्रेम भी रखना है और अपनी भौतिक जिम्मेदारियों को भी निभाना है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। किसी और का कुछ प्रश्न? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, पूर्वेश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये जो अभी ये जो आज का सप्ताह मतलब हर सप्ताह साप्ताहिक ये कक्षा रहेगी या कल भी रहेगी कक्षा? क्योंकि प्रभु जी, जैसे बताया आपने कि जो 6 दिन का प्रोग्राम है ये तो कंटिन्यूस ही रखा है 6 दिनों के लिए, क्योंकि ये छोटा प्रोग्राम है तो ये 6 दिनों में संपन्न हो जाएगा। ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम है जहाँ पे हम भगवत गीता के विषय वस्तुओं पे चर्चा करेंगे, किन किन विषयों पे बोला गया है भगवत गीता में। और इसके बाद जो हम एडवांस कोर्स के लिए जाएंगे, जब हम भगवत गीता का अध्ययन करेंगे, श्लोक सीखेंगे और डिटेल में भगवत गीता के विषय वस्तुओं को पढ़ेंगे, तब हम वीकली जाएंगे। तब वीक में एक ही क्लास होगा, संडे को जहाँ तक होगा वो आगे बताएंगे कब होगा, लेकिन जहाँ तक कि संडे को होगा। जी धन्यवाद। ओके, और किसी का कोई प्रश्न या फिर हम क्लास को विराम देंगे आज के लिए? कुछ फीडबैक भी आप दे सकते हैं, कुछ सुधार हो तो आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सुमित प्रभु। आपने जो वीडियो बताया था वो मुझे यानी अच्छे से सुनाई नहीं दिया था, शायद किसी तरीके का मेरा नेटवर्क इशू होगा, तो आप उसे चैट पर डाल सकते हैं क्या? जो कौन से वीडियो की बात कर रहे हैं? प्रभुपाद जिसमें बात कर रहे हैं वो वीडियो प्रभु जी? करेक्ट। ठीक है, मैं देखता हूँ। वैसे तो एक्चुअली मेरे पीपीटी के अंदर है, मैं देखता हूँ मैं अगर उसको निकाल सकता हूँ तो मैं निकाल के। आपने लिंक भी उसमें शेयर थी यूट्यूब की, तो वो यदि आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। धन्यवाद। जी। जी, और कोई करेक्शन प्रभु जी या कुछ फीडबैक देना चाहेंगे? सुमित प्रभु, प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली जो भी हम लोग जब भी गीता पढ़ते एज अ पाठ्यांतर करते हैं, जी। और उसमें सार बहुत कम समझ में आता है, और श्लोक ही हम उनकी यानी ट्रांसलेशन में इतने ज़्यादा यानी ये हो जाते मग्न हो जाते कि हम लोग एक्चुअली जो लेना चाहते हैं वो ले नहीं पाते। मैं भी एक बार गीता शुरू किया था पढ़ना, जब मुझे यही पता लगा कि मैं सिर्फ ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ, जो पढ़ रहा हूँ वो ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ, लेकिन उसका यानी मतलब क्या है जो आपने जिस तरीके से आप ये समझा रहे हो वो बहुत ही मुझे प्रभावशाली लगा कि यानी इस तरीके का सेशन बहुत ही मीन्स इफेक्टिव है। तो धन्यवाद आपका जो आपने। धन्यवाद प्रभु। हाँ, ये इस्कॉन का मैं बहुत यानी धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उसने इस तरीके के जागरूक सेमिनार रखना शुरू किया है, जिससे कि हम लोग जो इस्कॉन डायरेक्ट जा नहीं पाते हैं और यानी वहाँ पे भगवत गीता उसका अनुमोदन नहीं कर पाते, तो हम लोग अब इस तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा हमारा अपना समय निकाल के। और आप सभी प्रभुओं को धन्यवाद जो इस तरीके से यानी इन सब चीज़ों में अपना समय दे के हम लोगों को जो भी आप नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद प्रभु जी। ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद। प्रभुपाद ने रात जाग के इन सब चीजों का भाषांतरण किया इंग्लिश में, और इवन संस्कृत से ट्रांसलेशन जो हिंदी में भी किया उन्होंने। इसके कारण उनकी कृपा है कि हम लोग आज हमारे हाथ में बुक्स हैं और हम सेम टू सेम चीज आपको बता पा रहे हैं। तो इसके लिए सारी जो भी श्रेय है वो श्रीला प्रभुपाद को जाता है, आचार्यों को जाता है। और इवन जो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि बुक्स पढ़ने से जितना ज़्यादा समझ में नहीं आता, उतना ज़्यादा जो उसके नॉलेज रखते हैं उनकी तरफ से जो आप ग्रहण करते हो उसमें ज़्यादा समझ में आता है। जिस तरीके से आप जो बता रहे हैं वो मुझे ज़्यादा इफेक्टिव लगा। मैं यानी बुक
बुक पढ़ना भी इफेक्टिव होता है, लेकिन जो पहले आप ग्रहण करो फिर और पढ़ो, दिस इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस, व्हाट आई वांट टू से। यस प्रोफेसर, इवन मैंने भी जब शुरू में 2 बार गीता पढ़ा था, और आज जो मुझे, जब मैं लेक्चर सुनता हूँ, महाराज के लेक्चर्स या सीनियर वैष्णव्स के लेक्चर जब सुनता हूँ, तब एक अलग ही रियलाइजेशंस आते हैं। तो खुद हम जब पढ़ते हैं तब हम कुछ पॉइंट्स को समझ नहीं पाते हैं, उस टाइम हमारा बुद्धि नहीं रहता है उतना, लेकिन जब वही चीजें हमको अच्छे से समझाया जाता है, महाराज समझाते हैं, दूसरे वैष्णव समझाते हैं, तब हमको आसानी से समझ में आ जाता है। ये मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस रहा है। तो ये बहुत अच्छा रहता है जब हम किसी से सुनते हैं, तो काफी हमको समझ में ज्यादा आता है। ये तो सही बात बोली आपने। धन्यवाद प्रभु हमारी तरफ से। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अगर किसी और का कुछ प्रश्न है या कुछ कमेंट्स है तो दे सकते हैं, नहीं तो हमारा समय हो गया है, अभी 8:30 बजने वाला है, तो हम यहीं पे विराम देंगे आज की कथा को। और कल आप लोग जरूर अटेंड करिए सेशन। कल का जो सेशन है हमारा वो रहेगा ईश्वर पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप अपने मित्रों को, फैमिली मेंबर्स को भी इनवाइट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आज के सेशन को हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद। हरे कृष्णा।